Good morning, all of you. This is Mr. Pijatitis from Salem classes. So, students, today we will discuss unit number 6. This is an essay written by William Hazlitt on prejudice. Previous, we were discussing about um, there was the chapter is uh, called Modern Gallantry. So we have discussed that video or that lecture within 4 parts, and the 2 parts are remained. So the remaining part we will discuss later. But today we will start another new chapter. What I told you now. So before entering to this video lecture, I would like to request to you, if newly you are watching my channel, either visiting my channel, so please subscribe it and hit the bell icon also. So in this section we will discuss about the essay and about the author. Okay, this essay has been written in a romantic period. Already in our previous video we have discussed a little bit about romantic period, but I promised you once I will make a video for all the periods of English literature. Due to lack of time and due to having heavy pressure, I'm not able to make regular videos because as I told you, mentioned you previous, that I have a lot of burden. I have a lot of work as for senior secondary schools and my own coaching, etc. Okay, so let us begin. If you want to see more videos, you have to open the playlist that is titled like VMOU English, and this video lecture is for student of Vardhaman Mahabir Open University, and this is for BA first year, second book, prose and fiction. About the author, okay, let us look about the author. Objectives are there. Study guide means mm, how we will study this essay and what we will take for the for understanding of this essay. All the things are given here, and this is the romantic age. Already I told you about little bit the romantic age, and here is essay development, and we will, if it is possible, so we will discuss it later. And now, as I told you about, we will discuss that about the author. We will discuss. So, about the author, this video lecture will be in Hindi and English. Okay, I know that most of the North Indians, especially those who are studying in Open University, yes, they are not that much weak. I'm not insulting anybody or I'm not saying anything else, but I'm telling that it's good if we would understand that in our own language. My language is Odia, not Hindi. I have a very big problem to translate that in Hindi, but somehow I tried my level best. Okay, it is good to understand English into English. Okay, William Hazlitt, 1778 to 1830, means he was born 1778 एट माइडस्टोन. उसका जो जन्म है माइडस्टोन में होता है 1778 में,
और उनका समय सीमा जो 1778 से लेकर के 1830 तक है। ही वॉज द सन ऑफ यूनिटेरियन मिनिस्टर, वो एक यूनिटेरियन मिनिस्टर जो नेता है उन्हीं के बेटे थे। हिज फादर हैज स्ट्रॉन्ग लिबरल व्यूज which were inherited by the son। उसके पिताजी जो है एक लिबरल व्यक्ति थे, एक लिबरल विचार रखने वाले व्यक्ति थे, और बिल्कुल वही बात तो उनका बेटा को ऊपर ही आया है। मोस्ट ऑफ हिज यूथ वाज स्पेंट नियर श्रेयसबेरी। श्रेयसबेरी नाम की जो जगह है वहाँ पे उनका जो यूथ एज जो है अधिकतर स्पेंट हुआ है। ही केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस.टी. कॉलरिज एंड चूज राइटिंग एज हिज कैरियर। विशेष रूप से एस.टी. कॉलरिज से वो प्रभावित रहे। एस.टी. कॉलरिज एक बहुत बड़ा क्रिटिक्स थे, एक बहुत बड़े राइटर थे, और उनसे वो प्रभावित रहे, और प्रभावित रहने के चलते उन्होंने राइटिंग को अपने कैरियर के रूप में चुन लिया। ही वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू अदर लिटररी पर्सन बाय चार्ल्स लैम्ब हु बिकम हिज फ्रेंड इन लंदन। साथ ही साथ यहाँ पे वो और एक लिटररी व्यक्ति के बारे में परिचय देते जिनका नाम है चार्ल्स लैम्ब, जिनके साथ लंदन में उनकी दोस्ती हुई थी। Hazlitt started his career as a prolific journalist, parliamentary reporter, dramatist, and literary critic, essayist and lecturer। इन सभी के साथ वो अपना करियर को शुरू करते हैं, एक लेखक के रूप में, एक जर्नलिस्ट के रूप में, एक पार्लियामेंट्री रिपोर्टर के रूप में, एक ड्रामाटिस्ट के रूप में, एक लिटरेरी क्रिटिक के रूप में, एक एसिस्ट और लेक्चरर के रूप में वो अपना करियर को शुरू करते हैं। ही शोन हिज कंसर्न फॉर हिज कंट्री एंड वाज सपोर्टर ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। वो अपने देश को, देशभक्ति इसके अंदर फूट फूट करके भरा था, और साथ ही साथ फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एक समर्थक भी थे। ही वॉज मैरिड टू सारा स्टोडार्ड इन 1808। उनका शादी सारा स्टोडार्ड के साथ 1808 को होता है। लेटर इन 1819 ही फेल in love with Sarah Walker, which resulted into some kind of insanity। तो बाद में 1819 को उनका प्रेम जो है वो सारा वॉकर के साथ होता है, और ये उनके परिवार के लिए एक प्रतिबाधा का कारण बनता है। In 1888 he got divorce from his wife। यहाँ पर जो डेट को दिया गया मुझे थोड़ा गलत लग रहा, हो सकता है ये 1882 नहीं है, 1828 हो सकता है। ओके, पर मैंने एकदम से ये मेरे को दिख गया, मैं सर्च नहीं कर पाया पहले से, माफ़ी चाहता हूँ। हो सकता है 1828 हो, प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि उनका जो जन्म के समय है 1778 से लेकर के 1830 तक का उनका समय है, पर 1882 कहाँ से होगा, तो 1828 हो सकता है। तो इन समय में वो अपनी वाइफ से डिवोर्स ले लेते हैं। इन 1823 ही वाज अरेस्टेड फॉर डेब्ट्स। वो कुछ डेब्ट्स के कारण, कर्ज के कारण उनको अरेस्ट किया जाता है 1823 में। इन 1824 ही वाज मैरिड टू इसबेला ब्राइट वाटर। तो उसके बाद उनका जो शादी जो है दूसरी महिला से होती है, और जिसका नाम है इसबेला ब्राइट वाटर। आफ्टर 1812 ही रोट प्रोफ्यूसली फॉर वेरियस पीरियडिकल इंक्लूडिंग एडिनबर्ग रिव्यू। तो उसके बाद वो फिर जैसे 1812 के बाद फिर वो कई सारा लेख लिखते हैं, खास करके प्रचार पूर्वक जिसको कहा जाता है, प्रचार पूर्वक वो कई सारे
पीरियोडिक लेख लिखते हैं जो इंक्लूडिंग एडिनबर्ग रिव्यू, जो एडिनबर्ग रिव्यू के साथ। हिज राइटिंग टर्न फ्रॉम पॉलिटिकल जर्नलिज्म टू लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड एसे। उनका जो राइटिंग है एक पॉलिटिकल जर्नलिज्म से हटकर अब लिटरेरी क्रिटिसिज्म और एसे की ओर कन्वर्ट हो गया। सम ऑफ हिज वर्क्स आर एनलिस्टेड बिलो। उसका कुछ कार्य हम नीचे देख सकते हैं डेट के साथ, जैसे कि ए व्यू ऑफ द इंग्लिश स्टेज, लेक्चर्स ऑन द इंग्लिश पोइट्स, lectures on the English comic writer, table talk, the spirit of the age, life of नेपोलियन। ये सभी चीज़ें और ये सभी राइटिंग को उन्होंने लिखा है। उसके बाद फिर हम देखते हैं हजलित ग्रेट अचीवमेंट इज दैट ही मेड हिज लिवलीहुड फ्रॉम क्रिटिसिज्म। उनकी जो अचीवमेंट है वो विशेष करके अपने लिवलीहुड के लिए वो क्रिटिसिज्म को लेते हैं। ही डिसलाइक्ड फार्मूलास ऑफ क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म का जो फार्मूलास है उसको वो डिसलाइक करते हैं। ही वॉज सेवरली क्रिटिसाइज्ड एंड वॉज कॉल्ड ए मारक्वाक। उसको वो बहुत से समय में दूसरे के द्वारा क्रिटिसाइज्ड हुए हैं और उनको मारक्वाक यानी बतख के साउंड करने वाला जो महिला या व्यक्ति होता है उसी तरह उनको कंपेयर किया गया। और ए मेंबर ऑफ कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री। द क्रिटिक्स हाउ एवर एडमिट दैट ही वॉज ए वेरियस रीडर एंड हिज इमेंस कंट्रीब्यूशन एज ए क्रिटिकल हिस्ट्रियन टू द फील्ड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कैनॉट बी डिनाइड। कुछ भी हो, उनको बहुत सारे क्रिटिक किया गया हो, क्रिटिसाइज किया गया हो, लेकिन वो एक वेरियस रीडर रहे और साथ ही साथ उसके जो असीम अवदान एक क्रिटिकल हिस्ट्रियन के रूप में इंग्लिश लिटरेचर में, और उसको कोई भी नकार नहीं सकता, उसको कोई भी डिने नहीं कर सकता। अबाउट द एसे, इस एसे के बारे में अब थोड़ा हम देखते हैं। ऑन प्रेजुडिस, ये ऐसे में क्या ऐसा है, इस ऐसे में क्या लिखा जाता है, किसके बारे में कहा जाता है, इसको थोड़ा सा हम ध्यान से देखें। लाइक फ्रांसिस बैकन, जैसे कि फ्रांसिस बैकन है, ठीक है, जैसे कि फ्रांसिस बैकन है उसी की तरह ही है ना। लाइक फ्रांसिस बैकन has written the essay in a very lucid, clear, precise, stress and proverbial style। उनके ऐसे बिल्कुल फ्रांसिस बैकन की तरह है, जो छोटे छोटे सेंटेंस होगा लेकिन बहुत बड़े बड़े मतलब निकलेगा, जिसको बहुत ही क्लियर रूप से भी वो लिखते हैं, जैसा प्रोवर्बियल स्टाइल जो कहते हैं, उपदेशक शब्द की तरह होता है। देयर आर मेनी अफ्रोटिक लाइन इन द एसे विच नीड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। कई शक्तिपूर्ण लाइनें होती हैं उनके ऐसे में, उसको डिटेल्स एक्सप्लेनेशन करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि खाली पढ़ के लाइन को ट्रांसलेशन करते। दिस लाइन्स कॉन्स्टिट्यूट हिज मिनट ऑब्जर्वेशन अबाउट ह्यूमन नेचर रिगार्डिंग प्रेजुडिस। उस लाइनों में वो बिल्कुल पूर्ण रूप से इस बात को व्याख्या करते हैं, जो प्रेजुडिस का नेचर होता है ह्यूमन के अंदर, इंसान के अंदर, उनका जो ऑब्जर्वेशन है उसी को वो क्या करते हैं, दर्शाते हैं। प्रेजुडिस का मतलब ये होता है प्रतिकूल रूप से प्रभावित होना। हैजलिट हैज डिस्क्राइब द नेचर ऑफ प्रेजुडिस। प्रेजुडिस का जो प्रकृति है उसको भली भांति वो क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। द फैक्टर्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग इट, और किस कारण ये प्रेजुडिस का क्या फैक्टर से और किस कारण ये उभर के सामने आता है, उसको भी वो बताते हैं, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑल दिस हैव बीन रिटन इन अ सिस्टमेटिक वे। इन सभी को एक सिस्टमेटिक तरीके से वो क्या करते हैं,
लिखते हैं। द इमोशन आर वेरी कॉमन इन ह्यूमन नेचर एंड कैन बी नोटिस्ड इन ऑल रेस एंड कल्चर ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो इंसान के अंदर जो एक इमोशंस है वो सबके एक जैसा है, चाहे वो किसी भी बिरादरी से आया हो, चाहे वो किसी भी परंपरा से आया हो, ऑल ओवर द वर्ल्ड में वो एक प्रकार है। सबके अंदर, कहने का मतलब है कि सबके अंदर इमोशन पाए जाते हैं। ठीक है, सबके अंदर इमोशन पाए जाते हैं। That speaks of the universality of the theme of this essay। तो इस essay में ये जो यूनिवर्सलिटी जो थीम है इसको वो दर्शाते हैं। The writer begins the essay by defining prejudice, which means prejudging, coming of conclusion about something without fact, figure, reasons or logic। तो आपने ऐसे को शुरुआत एक डेफिनेशन के आधार पर देते, जो डेफिनेशन डिफाइन करते हुए, और वो जो प्रेजुडिस को का मतलब है प्री जजिंग बताते हैं। जैसे उनका कंक्लूजन में आते हैं तो वहाँ पे ना कोई फैक्ट रहता है, फिगर रहता है, रीजन रहता है और लॉजिक रहता है। द फैक्टर्स लीडिंग टू प्रिजडिंग आर इग्नोरेंस, हाइट्रेट एंड सेल्फ विलिंगनेस। जिसका फैक्टर्स जो लीडिंग करता है प्रिजजिंग और वो होता है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मतलब नकार देना, हाइट्रेट घृणा, सेल्फ विलिंगनेस आत्म इच्छा। इफ़ वी आर इग्नोरेंट अबाउट सम मैटर, यदि हम कोई भी मैटर को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। अगर हम कोई भी फैक्ट, कोई भी मैटर को हम इग्नोर करते हैं तो फिर क्या होता है, इफ़ वी इग्नोर अबाउट सम मैटर we are inclined to decide of the basic of pre-existing ill-founded idea on the subject। अगर हम इस प्रकार किसी भी कारण से नकारते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है कि हम प्रोत्साहित हो जाते हैं कोई एक प्रे एक्साइटिंग इल फाउंडेड आइडिया का जो सब्जेक्ट है उसको प्राप्त करने में। Those who are in the habit of taking decision under intervention, और कुछ लोग अति मूर्खतापूर्ण डिसीजन लेते हैं प्रेजुडिस के ऊपर, तो बिकॉज ए लिमिटेड नॉलेज ऑफ ए proposition may lead them to decide in the unjustified way। जो अल्प ज्ञान होता है वो क्या करता है कि इंसान को एक अनजस्टिफाइड वे की ओर लेकर के जाता है, अविचारक मार्ग की ओर लेकर के जाता है। दिस happens in the case of केस ऑफ रिलीजन। ये धार्मिक बातों से कई दफ़ा ऐसा हुआ है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंट सोशल नॉर्म्स ऑफ वेरियस कम्युनिटीज़ और जोग्राफिकल रीजन्स। तो ये जो ऊपर जो कहा गया अनजस्टिफाइड वे, ये रिलीजन के आधार पर, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के आधार पर, सोशल नॉर्म्स के आधार पर, जोग्राफिकल रीजन के आधार पर ये हुआ है। नैरो माइंडनेस एंड अ शॉर्ट विजन लीड टू प्रिजुडिस एंड इल जजिंग। जो अल्प विचार है, एक संकीर्ण विचारधारा जो क्या करता है कि प्रेजुडिस की ओर लेकर के जाता है। द नेशन ऑफ मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी ऑल्सो पजल आर विजन। नेशन में, देश में जो मेजोरिटी और माइनॉरिटी वाली बात आती है, ये एक प्रश्न बन के रह जाता है। सम पीपल थिंक majority is always right, but we know many a time it is mad of fools। कभी कभी मेजोरिटी है ना,
जहाँ पे होता है तो लगता है कि वही सही है, मेजॉरिटी ग्रुप वाले जो कहते हैं वही सही है, तो समय समय पर ये देखा गया है कि ये मूर्खता वाली बात भी होती है। नंबर शुड नॉट डिसाइड व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग। संख्या कभी भी क्या राइट है क्या रॉन्ग है इसको क्या नहीं कर सकती, नहीं कह सकती। जैसे कि we always wish that others should surrounded to our whims। हम हमेशा सोचते हैं कि हमारा जो whims है, हमारा जो विचारधारा है, उसी के प्रति ही लोग क्या हो जाए, सराउंडिंग हो जाए, विदाउट रीजन और राइम, कोई भी बिना कारण से। बट वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट आर कंक्लूजन कैन बी रॉन्ग एंड फेटल। हम अपनी विचारधारा में कभी कोई गलती हो तो भी उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते। तो एक उदाहरण दे करके इसको पूरा करूँगा मैं। मान लीजिए एक बफेलो को देख करके 10 व्यक्ति कहते हैं कि ये तो काव है, और मैं अकेला व्यक्ति वहाँ पर हूँ और मैं कह रहा हूँ नहीं है, ये बफेलो है, क्योंकि मैं बचपन से पहचानता हूँ कि बफेलो कैसा होता है। लेकिन 10 आदमी कहते हैं कि नहीं भाई ये तो बफेलो है, सॉरी काव है, और तभी उनकी बातों में मैं हाँ आप जो कह रहे हो वो सही है अगर मैं कर देता हूँ तो ये होता है प्रेजुडिस। अगर नहीं मैं डट कर के रहता हूँ कि नहीं मैं बचपन से सीखा हूँ ये बफेलो नहीं ये काव है, काव तो वाइट रंग का होता है और बफेलो तो ब्लैक कलर का होता है। तो मैंने कोशिश करी आपको समझाने के लिए, और आगे हम डिस्कशन करेंगे उसका टेक्स्ट, साथ ही साथ एनोटेशन और साथ ही साथ कीवर्ड्स। लेकिन कभी कभी कमेंट करके आप भी बताया करो कि चैप्टर में से एग्जैक्ट कौन सा चीज़ चाहिए। मैं तो बहुत कुछ चीज़ें व्याख्या कर देता हूँ, मुझे पता नहीं चलता कि स्टूडेंट आखिरकार चाहते क्या है। ज़्यादा व्यूअर्स तो नहीं है इस मतलब इसमें, लेकिन फिर भी जो कुछ है 10 20 25 होंगे, तो कम से कम उनसे अगर मुझे फीडबैक मिल जाए कि रियलिटी में वो क्या चाहते हैं, किस तरह का चाहते हैं, तो मुझे और थोड़ा सा करने में आसान होता है। थैंक यू, मैं गॉड ब्लेस यू, हैव ए गुड डे।